So, good evening everyone. Okay, so today students we are going to study a very important topic which is acceleration in uniform circular motion. Okay, so look here everybody. Acceleration in, I will write UCM. UCM meaning uniform circular motion. Okay, I hope you can see the board. Acceleration in uniform circular motion. Now, first of all, let's quickly revise what is uniform circular motion, because before studying for acceleration in uniform circular motion, we need to understand first of all what is uniform circular motion. Secondly, we also need to understand that why there is acceleration in this motion. Okay, तो हमको ये समझना जरूरी है कि acceleration कैसे आएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. उसके लिए हम एक बार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो फिर से समझ लेते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस when an object is performing circular motion with a constant speed. Okay, that means this object is performing this circular motion and the speed at any moment is constant. So speed is constant. Okay, now what is speed here? Speed is the rate at which the object is covering this distance. Okay, like this here. Can you see that? So this is speed v and it is constant. This magnitude is constant all the time. So that kind of motion, that kind of circular motion is known as uniform circular motion. Okay, तो अब यहाँ एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है. बट क्योंकि टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सो हमको ये जानना होगा कि यार एक्सेलरेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों एक्सेलरेशन आ रहा है. अब देखो बच्चों, सभी लोग जानते हैं, एवरीबॉडी नोज दिस फैक्ट फॉर श्योर दैट एक्सेलरेशन कम्स व्हेनेवर देयर इज चेंज इन वेलोसिटी. यस और नो? अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा. ओके, बिकॉज we all know that the formula for instantaneous acceleration is vector dv by vector dt. I hope you all know this thing. Okay, अब ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है. अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा. अब हमको ये खुद से सोचना है यार क्या यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है? मतलब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, when the particle is performing circular motion, is its velocity changing? Okay, so some people will say, sir, no, its speed is constant, but I will say no. Yeah, speed is constant, but continuously we can see the direction of motion is changing. How? See, I draw a bigger circle here in order to explain you. Look here. Right now the particle is here and its motion is here along this tangent. Yes or no? At point A, its velocity is vector v1. Let's say that after some time, when it has turned an angle theta and the object has reached point B, okay, now where is the velocity? Can you see that? The velocity vector is this. Can you see? This is velocity vector v2. Do you understand? Now you can say definitely, sir, velocity vector v1 magnitude wise is equals to velocity vector v2 magnitude wise. Why? Because it is given the speed is constant. That means they are saying the magnitude of the velocity is constant throughout the circular motion. अब यहाँ पर एक बात बताओ आप मुझे, क्या वेलोसिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है? नहीं, वेलोसिटी तो वेक्टर है. तो वेलोसिटी तो मैग्नीट्यूड भी होती है और वो डायरेक्शन भी होती है. दैट मींस अगर आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख के केवल डायरेक्शन को चेंज करें तो भी वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे होते हैं. ठीक है, दैट मींस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि भले ही मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, भले ही ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, मैग्नीट्यूड v1 v2 का सेम है, बट उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. और वेलोसिटी तो दो चीजों से बनती है. वेक्टर v के अंदर, वेक्टर v में दो बातें होती है. एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, ओके, और दूसरा होता है इसमें उसका डायरेक्शन. आपको समझ आ रही है? तो यार हमने क्या करा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करा, बट यार अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो भी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वेक्टर को फिक्स करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों फिक्स करने पड़ेंगे.
अगर आप कोई एक भी चीज चेंज करते हो या दोनों ही चीजें बदल देते हो तो भी वो वेक्टर बदल जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो बदल रहा है, इसलिए नहीं कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पूरे पूरे सर्कुलर मोशन में। अगर मान लो वो स्टार्ट करता है यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड से, तो उसका हर जगह स्पीड जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। बट हम देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन बदल रहा है, और डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन तो है। इसलिए हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात समझ आ रही है? तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि एक्सेलरेशन क्यों है। ओके, एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अब चैलेंज ये है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करें, इस वेलोसिटी को, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करें। अब ये हमारे सामने एक चैलेंज आता है। तो यार देखो, इसको कैलकुलेट करने के तो बहुत तरीके हैं। ओके, कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं, 2-3 प्रकार के शॉर्टकट मेथड्स हैं, कुछ एक लॉन्ग कट मेथड भी है जिससे प्रॉपर हम वेक्टर्स की मदद से इसको डिराइव कर सकते हैं, जो कि स्कूल में बोर्ड्स में काम भी आता है। बट देखो, इसका डेरिवेशन अगर हम शॉर्टकट मेथड से, वेक्टोरियल मेथड से समझते हैं तो काफी आसानी हो जाती है समझने में भी। और इस लेक्चर के एंड में आते आते मैं आपको आज थोड़ा फील भी कराने की कोशिश करूंगा कि यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जैक्टली है क्या, सॉरी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फील करने की भी एंड में कोशिश करेंगे बच्चों। सो लेट्स बिगिन इट्स डेरिवेशन। अभी मैं आपको सिंपल सा कोई शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ठीक है। देखो, फर्स्ट एक काम करता है, अभी कॉपी कर लूं तो मैं इसको फिर रब कर देता हूं, ठीक, और फिर हम थोड़ा सा और बड़े स्पेस में इसको यूज करेंगे। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन शुरू करते हैं। Okay, now look here students. Suppose ये सर्कल है और इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ये है वेक्टर v1, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ एंगल थीटा घुमा, अब इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है v घूमकर हो जाता है वेक्टर v2। क्या आप देख सकते हैं इसको? ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा एंगल थीटा घुमाया और वेलोसिटी वेक्टर घूम गया। अब मैं इन वेक्टर्स को प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है वेलोसिटी वेक्टर v1। ओके, अच्छा, अब v2 को मैं इसी पॉइंट से ओरिजिनेट करता हुआ दिखाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? आप बोलेंगे सर v2 किस एंगल पर होगा, v2 किस एंगल पर होगा, ये सोचना पड़ेगा। तो यार इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सपोज अगर मेरे पास एक ऐसा फिक्स्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये रेडियस है और ये वेलोसिटी दिख रही है आपको। अब अगर ये पूरा एक फिक्स्ड बॉडी है, अगर मैं रेडियस को घुमाता हूं तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी घूम रही है। कैन यू सी दैट? अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को घुमाता हूं तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये भी रोटेट हो रही है ऐसे इसके साथ। तो अगर ये थीटा रोटेट होती है हॉरिजॉन्टल से, तो ये भी रोटेट होती है वर्टिकल से थीटा। या यूं कह सकते हैं कि अगर आप किसी लाइन को थीटा से रोटेट करते हो तो उसका जो नॉर्मल है उस लाइन का वो भी थीटा से रोटेट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी वेक्टर v2 है वो भी वर्टिकल से ऐसे थीटा एंगल पर आएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, ये तो थीटा एंगल पर आ गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए है चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और अगर अभी केवल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दें तो हमको ये चीज पता करनी है। अब बच्चों कैसे किया जाए? ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? ये हो जाएगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। ओके, यस और नो? अब इसको मैं लिखूं मैग्नीट्यूड वाइज, तो बच्चों
ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v2 माइनस v1। ओके, अब बच्चों आप सभी को याद होगा कि हमने वेक्टर्स चैप्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मैंने आपको बोला भी था कि इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अच्छे से याद रखना है। और वो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि जब कभी भी आप दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है अगर उन्हें ऐड करते हैं तो उनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो कितना आता है 2a cos ऑफ थीटा बाय 2। और अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कितना आता है 2a sin ऑफ थीटा बाय 2। और यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जो v2 का मैग्नीट्यूड है और जो v1 का मैग्नीट्यूड है ये तो सेम है, मतलब ये दो ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते भी है। तो ऑब्वियसली अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो वेक्टर्स को तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 2a sin थीटा बाय 2। ये भी ट्रायंगल लॉ से ही आएगा। ओके, तो अब यहाँ बोलोगे सर डेल्टा v का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आ जाएगा 2v sin ऑफ थीटा बाय 2। क्या ये बात समझ आ गई आपको? अब क्योंकि मुझे तो यार इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, अब क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए है तो ऑब्वियसली मुझे डेल्टा v नहीं चाहिए, मुझे dv चाहिए। मतलब मुझे कोई सब्सटैंशियल चेंज इन वेलोसिटी नहीं, मुझे तो बहुत ही स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब अगर मुझे बहुत ही स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी चाहिए तो मैं इंसिडेंस भी बहुत करीब पे लूंगा। तो मैं कोशिश ऐसी करता हूं कि मैं थीटा को बहुत स्मॉल कर देता हूं। ओके, सो इफ not if, we will write here this delta v will be equal to dv when theta is taken very small which is equal to d theta। ये बात समझ आ गई? तो जब हम थीटा को बहुत छोटा कर देंगे डी थीटा कर देंगे मतलब मैं बहुत ही हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं यहाँ पे। आप डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ओके, तो ये अगर वेक्टर v1 है, ये वेक्टर v2 है और ये जो एंगल है बहुत ही छोटा है। बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा तो बड़ा बताना ही पड़ेगा, बट मान के चलिए वो एंगल बहुत छोटा है। ओके, तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि अगर ये v1 है तो ये v2 है और ये जो एंगल है ये काफी छोटा है d थीटा। आपको समझ आ गया? अब मुझे डेल्टा v चाहिए तो डेल्टा v ऑब्वियसली v2 माइनस v1 जो कि कितना हो गया 2v साइन ऑफ थीटा बाय 2। ओके, तो अब यहां से मैं कहूंगा dv वेक्टर जो है वो हो जाएगा 2v साइन ऑफ d थीटा बाय 2। ओके, 2v साइन ऑफ d थीटा बाय 2। अभी हम सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं कि साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल इज दैट एंगल इटसेल्फ। ओके, तो अगर मैं कहता हूं साइन d थीटा, साइन ऑफ वेरी स्मॉल एंगल इज इक्वल टू d थीटा ओनली। सो यहां से मैं ये बात लिख सकता हूं, आप भी समझते हैं क्योंकि बहुत दिनों से इस चीज को हम पढ़ रहे हैं, इसको मैं d थीटा बाय 2 भी लिख सकता हूं। ओके, जिनको ये चीज समझ में नहीं आई है तो थोड़ा सा मैथमेटिकल इक्वेशंस को और मैथमेटिकल टूल्स को दोबारा पढ़ेंगे, उन्हें वापस से याद आ जाएंगी ये सारी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वेक्टर dv का मॉड आ जाएगा v d थीटा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। ओके, अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाएगा v d थीटा बाय dt, क्योंकि यार v तो कांस्टेंट है, v तो मैग्नीट्यूड है ना, तो स्पीड तो कांस्टेंट है तो उसको तो डिफरेंशिएट अपन करेंगे नहीं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे भी तो जीरो हो जाएगा, तो केवल बचेगा v d थीटा बाय dt। बात समझ आ गई? तो हम यहां से बोल सकते हैं d थीटा बाय dt हर बच्चा जानता है क्या होता है, ओमेगा। तो फाइनली जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आया है
ये किसके बराबर आया है? ये आया है v ओमेगा। अब इसको हम दूसरे तरीकों से भी लिख सकते हैं बच्चों। ओके चलिए पहले आप इसको कॉपी करिए, तो फिर हम आपको इसको दूसरे तरीके से लिखने को भी बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन आता है ये आता है v इंटू ओमेगा, और सभी को पता है ये बात कि ओमेगा क्या हो जाएगा v बाय आर। यस और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v आर ओमेगा के बराबर होता है या फिर ओमेगा v बाय आर के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर। ओके, और वी कैन ऑल्सो से, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा को v बाय आर में लिख के v को भी तो r ओमेगा लिख सकता हूं, तभी कितना हो जाएगा? तभी हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल कर आते हैं यहां से। अब उसको v स्क्वायर बाय आर बोलते हैं या r ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओके, तो ये आ गया भाई मैग्नीट्यूड, बट हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो जान लिया, ठीक है भाई। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r आ गया, ठीक है, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। बट हमको यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, सॉरी, यहाँ तो हम उसका डायरेक्शन भी पता करेंगे ना कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ओके चलो उसको भी जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ अगर कोई डाउट है आपको इतने स्टेप्स में, तो पहले तो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, नो इशू। एंड अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, रही बात डायरेक्शन की बच्चों, अब देखो मैंने आपको एक बात और बोली थी, जब कभी भी आप दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं और अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अगर उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट हमेशा उनके बीचों बीच एंगल बाइसेक्टर पर आता है। जैसे कि सपोज एक वेक्टर ये है, ओके, और ये दूसरा वेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सपोज, तो ये तो रोम्बस बन गया यार, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट है वो तो ये वाला डायगोनल होगा, v1 प्लस v2, सभी जानते हैं, यस और नो। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये बिल्कुल बीचों बीच थीटा बाय 2 पर आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ये बिल्कुल बीचों बीच कहाँ आएगा? थीटा बाय 2 पर। सेम कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर लगाएंगे जो हमने अभी डेरिवेशन किया है। ओके, अब देखो बच्चों, जैसे कि हमने अभी बोला कि ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर v1, ओके, और ये है हमारा वेलोसिटी वेक्टर v2 जो हल्का सा चेंज हुआ है, और ये एंगल है भाई d थीटा, यस और नो। अब अगर मुझे वेक्टोरियली क्या करना है मुझे, मैंने तो बोला भाई dv वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा v2 माइनस v1। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से ड्रॉ करूंगा माइनस ऑफ वेक्टर v1। अब कायदे से देखें तो वी आर एडिंग एक्चुअली वेक्टर v2 एंड माइनस वेक्टर v1 हियर। ओके, अब सिंस दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, so where will the vector lie? Where will the vector dv lie? Okay, so vector dv is actually vector v2 minus vector v1, so dv vector will lie like in between. Okay, so now this complete angle is how much? This is pi minus d theta. So we want to find out this angle. This is in between these two vectors. Okay, it is actually angle bisector. So it will become pi by 2 minus d theta by 2. बात समझ आ गई? तो यहां से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि ये जो एंगल है, अगर मैं वापस से सर्कल को ड्रॉ करूं और अगर मैं बोलूं कि ये भाई v1 वेक्टर है और जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया?
यहां से देखें तो पाई बाय 2, यहां से देखें तो पाई बाय 2 माइनस डी थीटा बाय 2। यस और नो? अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? ये है वेक्टर dv। ओके, अब इसका एंगल इसके साथ कितना आ रहा है? पाई बाय 2 माइनस डी थीटा बाय 2। अब सिंस डी थीटा बाय 2 इज वेरी स्मॉल, वी कैन से दैट ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। इसका मतलब वो जो dv वेक्टर आया वो एक्चुअली ऑलमोस्ट यहां परपेंडिकुलर आ गया, क्योंकि डी थीटा तो बहुत स्मॉल है यार, तो इसमें पाई बाय 2 माइनस डी थीटा बाय 2 मैं डी थीटा बाय 2 को नेगलेक्ट कर सकता हूं और लिख सकता हूं कि एंगल ऑलमोस्ट पाई बाय 2 ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है v1 के। तो वेक्टर dv जो है वो v1 के ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर माना जा सकता है अगर डी थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो। यस और नो? और हमको पता है कि जो एक्सेलरेशन था वो तो था dv बाय dt। यस और नो? एक्सेलरेशन जो था वो तो था dv बाय dt। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर dv होगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर a होगा। यस और नो? तो हम यहां से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन होगा जो वेक्टर dv का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v1 होगा और टुवर्ड्स द सेंटर होगा। सो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज towards the center and perpendicular to velocity vector. Is it clear everyone students? So now ये तो एक स्पेशल घटना होगी भाई कि जो एक्सेलरेशन वेक्टर आया है आपका, वो एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया। बात समझ आ रही है? एक्सेलरेशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गया और कहां आ गया? टुवर्ड्स द सेंटर। तो हमने क्या करा है, अब से इस एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम दे दिया जिसको हमने बोला है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, अब से हम इस एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नाम दे चुके हैं जिसको हम क्या बोलेंगे आज से? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया है इसका मैग्नीट्यूड आता है v² बाय r या इसका मैग्नीट्यूड आता है ओमेगा² r। ओके, इसको हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है क्या? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। इसको स्पेशल नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, फिर से बताओ मुझे, क्या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द टेंजेंट लगता है कि टुवर्ड्स द सेंटर? ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेंटर। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है वेलोसिटी का, बट डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है और वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होता है और इस एक्सेलरेशन का स्पेशल नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड ओमेगा² r या फिर v² बाय r होता है और ये एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड होता है। ये बात क्लियर है? ये एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर डायरेक्टेड रहेगा। अब यहां तक की तो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई ये रहा अपना ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता हुआ सर्कुलर मोशन, ये रही वेलोसिटी वेक्टर v। कुछ हो ना हो इस पे भाई सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। देखो, इसका पता है टुवर्ड्स द सेंटर या फिर परपेंडिकुलर लगने के छोटा सा लॉजिक भी है। कैसे लॉजिक है आप समझो। अगर ये एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर नहीं होता तो क्या होता? फिर इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी का लॉन्ग हो जाता, और अगर एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया तो क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड तो बदल ही देगा ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहां से देखो एक्सेलरेशन का अभी क्या कंपोनेंट है? a cos 90 डिग्री वेलोसिटी के लॉन्ग कितना होगा? 0। दैट मींस इस एक्सेलरेशन का अभी वेलोसिटी के अलोंग कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिस वजह से वो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई आपको? तो इस तरीके से आप इस लॉजिक से भी चल सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा है। अब यार अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है जब एक्सेलरेशन खुद वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं आखिरी में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो चलो उस बात पे भी जोर देते हैं। जो सिंपल सी बात है,
एक काम करो बच्चों, आप ऐसा इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरी कमर से एक रस्सी बंधी हुई है जो कि आगे आप तक जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी कमर से एक रस्सी बंधी हुई है और जो कि मैं ऐसे खड़ा हूँ और ये रस्सी यहाँ किसी पॉइंट तक जाती है और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक आती है, ठीक है। अब उस रस्सी से मैं बंधा हूँ तो उस रस्सी की लेंथ तो फिक्स्ड हो गई। कमान बताओ, उस रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है। ऐसे समझो कि ये मैं हूँ और ये वो पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक। अब ये रस्सी की लेंथ फिक्स्ड है, मान लेते हैं कि जो रस्सी है या रोप है ये इनएक्सटेंसिबल है। सो दिस रोप इज राइट नाउ इनएक्सटेंसिबल एंड वन एंड इज फिक्स्ड हियर एंड आई एम स्टैंडिंग हियर टाइड टू दिस रोप। नाउ व्हाट इज माय एम? आई वांट टू वॉक स्ट्रेट। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई वांट टू वॉक स्ट्रेट लाइक दिस। मैं तो सीधे चलूंगा भाई, मैंने बोल दिया कि मैं सीधा चलने वाला हूं। मैं अगर सीधा चलूंगा तो आप बताओ क्या मैं इस पोजीशन पे पहुंच सकता हूं कि नहीं? बस मुझे इस बात का आंसर दो। रस्सी बंधी हुई है, क्या मैं ए से बी पोजीशन तक आ सकता हूं? ऑब्वियसली आप आंसर करोगे नहीं सर आप नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसा होने के रोप की लेंथ को बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इस ट्रायंगल में आप देखिए तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस है और हाइपोटेन्यूज तो बेस से बड़ा ही होगा। यस और नो, हाइपोटेन्यूज को बेस से बड़ा ही होना होगा, उसमें आपके ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो और मैंने कह रखा था कि यार रस्सी तो इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी की लेंथ नहीं चेंज होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सीधा चलता हूं तो मैं इनडायरेक्टली रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं बस सीधा चलने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे सीधे चलने से रस्सी खींच रही है। क्या कह रहे हैं, ये बात पल्ले पड़ रही है आपको? मेरे सीधे चलने से ये रस्सी खींच रही है। ओके बॉस, तो ये तो थोड़ा सा फंडा अलग गलत हो गया, भाई मैं सीधा नहीं चल सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं सीधे कदम रखना, मैं देखो मैं चाहता हूं सीधा कदम रखना ऐसा, बट क्योंकि जैसे ही मैं सीधे चलूंगा रस्सी मुझे अपनी तरफ, मैं रस्सी को खींच दिया, मैंने सीधे चल के रस्सी को अपनी तरफ खींच दिया तो रस्सी भी तो मुझे रिटर्न खींचेगी। तो मेरा कदम ऐसे यहां पे ना पड़ के मेरा कदम थोड़ा सा ऐसा पड़ेगा, यहां ना पड़ के ऐसा पड़ेगा। बात समझ आ रही है? मतलब आई विल नॉट लैंड एक्चुअली एट बी, आई विल लैंड समवेयर एट बी डैश। यू अंडरस्टैंड? तो अब देखो मैं हमेशा से कहां चलना चाह रहा हूं, स्ट्रेट। मैं तो सीधा चल रहा हूं भाई, मैंने नहीं बोला कि मैं टेढ़ा मेढ़ा जाऊंगा, मैंने बोला भाई मैं सीधा चलूंगा। तो ये अगर ये मेरे कमर से रस्सी बंधी हुई है, मैं सीधा चलूंगा, बट रस्सी क्योंकि खींच नहीं सकती है और मैं सीधा चलने में रस्सी को इनफैक्ट खींच रहा हूं, तो रस्सी विल पुल मी बैक एंड आई विल फॉल इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, सो इंस्टेड ऑफ लैंडिंग हियर आई विल लैंड समवॉट हियर। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ अगेन आई विल ट्राई द सेम थिंग, आई विल ट्राई टू वॉक स्ट्रेट लाइक दिस। फिर से मैं यहाँ चलने की कोशिश करूंगा और फिर से भाई मैं यहाँ पहुंच सकता हूँ क्या? नहीं। फिर से पाथ थोड़ा सा डिविएट होगा और फिर मैं इधर लैंड करूंगा। इंस्टेड ऑफ लैंडिंग ऑन पॉइंट सी आई विल लैंड एट सी डैश व्हिच इज अगेन फॉलोइंग ऑन द सर्कुलर पाथ। आप समझ रहे हो? तो हर वक्त मैं कैसा चलना चाह रहा हूं? हर वक्त मैं चलना चाह रहा हूं टेंजेंशियल। आप समझ आ रहे हो? समझ आ रही है बात? मैं चलना चाह रहा हूं टेंजेंशियल, बट हर वक्त रस्सी मुझे अपनी तरफ पुल करके उस सर्कुलर ट्रैक में लेकर आ जा रही है। अब ये बात आपको समझ आ रही है? तो एक प्रकार से मेरी स्पीड तो नहीं बदल रही है, बट मेरा डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? ऑब्वियसली ये एक्सेलरेशन मुझे प्रोवाइड कर रही है रोप। कैसे? मैं रोप को अपने टेंजेंशियल चलने की वजह से बाहर की तरफ खींच रहा हूं। इन रिटर्न मुझे सर्कुलर पाथ में रखने के लिए ये रोप मुझे अंदर की तरफ खींच रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसीलिए मेरा मोशन जो है एक्सेलरेटेड है टुवर्ड्स द सेंटर। और ये फोर्स कोई भी नहीं, रोप का टेंशन फोर्स मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं जो रोप की टेंशन है राइट नाउ, ये मुझे जो मेरा मास है में एक्सेलरेट कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर। और इन शॉर्ट टेंशन जो है रोप की वो mv²/r के बराबर है, या यूं कह सकता हूं कि ये मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करके दे रही है टेंशन। यहां पे टेंशन इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ आ गई स्टूडेंट्स? अब ऐसे आप बोलोगे सर तो क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग फोर्स होता है? नहीं, ये एक थोड़ा सा कंसेप्शन सुधार लेना। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से नई चीज नहीं है। जो भी फोर्स रेडियली इनवर्ड लगता है, जो भी फोर्स रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, इट हैज द कैपेसिटी टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड हेंस इट कैन एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। Okay, for example in this case tension is doing that job.
हम आगे इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, जैसे कि यार अर्थ, ऑब्वियसली अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, तो यहाँ पे अर्थ और सन के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस रोल को प्ले कर रहा है। एटम्स में आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो ऑब्वियसली वहां पे जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का, वो फोर्स जो है हमको हेल्प कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने में। बहुत सारे केसेस है, हम अगली क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी कि कैसे अलग अलग प्रकार के फोर्सेस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू टुडे। ओके, एंड प्लीज जो होमवर्क मैं दूंगा आपको, होमवर्क कंप्लीट करना रहता है, तो मैंने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था वो अगली क्लास में चेक करने वाला हूँ, तो उसको कंप्लीट रखना, मैंने डेट ऑलरेडी दी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।